दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 में वी हैड डिस्कस्ड ब्रीफली प्रीएम्बल ऑफ इंडिया एंड वी हैड डिवाइडेड प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इन 2 पार्ट्स जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड बेटर फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। In part 1, we had discussed we people of India solemnly resolved to constitute India into what? That was we want to constitute India into sovereign, secular, social, democratic republic. And why we want to constitute India as sovereign, secular, social, and democratic republic? This why, the answer of this why lies in the second part of this say preamble, and this is we want to constitute India into secular, social, sovereign, democratic republic to secure all its citizens justice, social justice economically, justice politically, and liberty. What sort of liberty we want to give to the Indian people? That is liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith. What else we want to give to the people of India, or people of India want to give themselves through this preamble, through this constitution? That is the equality. In what? Equality in of status and equality of opportunity for all the people, irrespective of their religion, irrespective of their race, irrespective of their caste, and whatever the color is there. And what? And to promote among them fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. This is the basically this is the objective of the preamble. In first part we had, again I am repeating it, in first part we have learned that we people of India want to constitute India into sovereign, secular, social, democratic republic. These 4 parts we had discussed briefly, and I hope all of you would have enjoyed it. And in this part we will discuss justice, liberty, and equality, and this was the objective of this preamble. In last we had discussed fraternity, dosti, bhaichara. This was the actual purpose or objective of these 3 things. इनके थ्रू जो है हम ये क्या अचीव करना चाह रहे थे? हम अचीव करना चाह रहे थे फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को बाकी रखते हुए यूनिटी ऑफ द पीपल, यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं। एंड उससे हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? द गोल इज टू अचीव द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. दैट इज द गोल. Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. This was the objective. See, democracy will be indeed hollow if it fails to generate this spirit of brotherhood among all sections of people. ये एक वास्तविक बात है कि डेमोक्रेसी जो है, इसका मकसद जो है वही डिफीट हो जाएगा अगर हम अपनी कम्युनिटी के बीच में, इंडियन कम्युनिटी के बीच में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड, वी आर नॉट एबल टू जनरेट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग्स द पीपल. अगर ये नहीं हुआ तो हमारा समाज जो है हमेशा बटा रहेगा और हमेशा हमारे समाज के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होती रहेंगी. इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये था, द फीलिंग that all Indians, irrespective of religion, race, caste, etc., अगर जो उनके अंदर फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड नहीं पैदा होती है, ये सिर्फ इंडिया के लिए भी बात नहीं है. दिस आई थिंक इट विल बी जनरल प्रिंसिपल फॉर ऑल द नेशंस.
कहीं पे भी आप किसी भी देश के लिए जाएंगे, अगर वहां के उसके देश की जनता के अंदर यूनिटी नहीं है, उनके अंदर उनको ये नहीं लगता कि हम इसी मदरलैंड के जो है वी आर सन ऑफ दिस मदरलैंड, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी मादर वतन है, जब तक ये जज्बा पैदा नहीं होगा तो वहां पर हमेशा जो है डिवाइड रहेगा। एंड ऑल द एक्सटर्नल पावर्स, वट एवर द एक्सटर्नल पावर्स आर देयर, इफ दे आर फ्रेंड और दे आर फोर्स, they will try to take the advantage of this divide. तो इसका फायदा ये है, मकसद ये है, the feeling that all Indians irrespective of religion, race, caste etc. are the children of the same soil and the motherland. इससे एक हमें जनरेट करनी है, अपनी जनरेशंस के अंदर ये फीलिंग जनरेट करनी है that we are the children of the same soil, of the same motherland. To cultivate such feeling is much more important in Indian context. क्योंकि हमारे यहाँ पर we had different languages, 18-19 languages हमारी शेड्यूल के अंदर आती हैं. We had like different cultures. अगर आप नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में अगर if you go to Jammu and Kashmir, they had a different culture. In UP we had a different culture. Even in if we goes in the East UP, then they had a very different culture in respect of the Western UP. If we goes ahead to the Bihar and we goes through the Gujarat and the Tamil Nadu, they are totally different. They had different languages, they had different customs, they had different festivals, everything is different. So, in the Indian context, it was very important to cultivate such feeling that because this country is like a composition of a mixed culture, languages and race. And see, what is important, one more thing let me tell you, in the UDHR means United Nations Declaration of Human Rights. Article 1 embodies this noble and human principle. जो UDHR है, यूनाइटेड नेशन ने जो डिक्लेयर किया था, वहां पे भी उन्होंने आर्टिकल 1 के अंदर जो है ये नोबल कॉज जो है वो रखा है और इसको एक ह्यूमन प्रिंसिपल की तरह रखा है दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स. और ये वहां से जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज ली गई है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भी देश हैं जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वहां पे जो भी डिक्लेरेशंस होती हैं उसको वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आते हैं. तो हमारे यहाँ पर चूंकि पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज रखी गई है, तो वहां पे भी उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर किया है और इनकी आपस में ब्रदरहुड को बढ़ाना चाहिए. ये यूडीएचआर के अंदर जो आर्टिकल 1 में रखा गया था उसका रीजन ये था जस्ट नॉट फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री, दिस वाज कैप फॉर ऑल द कंट्रीज. बिकॉज जैसे हम एक देश के अंदर एक कम्युनिटी होती है, हमारे आपस के ताल्लुकात होते हैं, इंटरनेशनली वी ऑल्सो हैड कम्युनिटी जहां पे हम जाते हैं, उनसे हमारे आदान प्रदान होते हैं, वहां से हम सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं, वहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं. कल्चरली वी एक्सपोर्ट कल्चर ऑल्सो. अब कोई माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे अगर आप बात करेंगे तो हमारी जो है ईरान के साथ में कल्चरली बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, रशिया के साथ में बहुत ज्यादा आजादी के बाद से बहुत ज्यादा हमारे कल्चर्स का आदान प्रदान हुआ है. तो मेन जो इसका रीजन था वो था कि टू प्रमोट ब्रदरहुड अमंग्स द पीपल in a particular country or in the world also. By means of fraternity, it is the concept of brotherhood which has been contained in the preamble of Indian Constitution. जो ये लास्ट में हमने लाइन लिखी है, ये जो है by means of fraternity जो है हम brotherhood बढ़ाना चाहते हैं, और that this is the important aspect of the preamble as well as the Indian Constitution. Second thing is, by this equality of status and equality of opportunity, ये जो है हमारे प्रेमबल के अंदर रखा गया है टू गारंटी द राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी
of status and opportunity. See, section, let me tell you, abolishing the title by means of Article 18 and removal of untouchability by Article 17 has been enacted for the same purpose. ये हमारे आर्टिकल 17 और 18 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, उसका मकसद ही ये था कि ये जो अनटचेबिलिटी है और द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, ताकि हम लोगों के बीच में, भारतीय लोगों के बीच में जो एक समानता की भावना है उसको पैदा कर सकें. जब तक समानता की भावना पैदा नहीं होगी, जब तक उनके अंदर दोस्ती की भावना पैदा नहीं होगी. लेट मी टेल यू, रीड इट आउट. व्हाट इज द आर्टिकल 17? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ये किया गया था. अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. ये एबॉलिश कर दी गई है और इसकी प्रैक्टिस किसी भी तरह से जो है वो प्रतिबंधित है. द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. ये हमारा आर्टिकल 17 है. और उसके बाद में आर्टिकल 18 जो है उसके अंदर 3 क्लाउजेज रखी गई हैं. द वन इज नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट. सिर्फ मिलिट्री के अंदर जो टाइटल्स दिए जाते हैं, आपने सुना होगा, ब्रिगेडियर है, कर्नल है और एयरफोर्स के अलग टाइटल्स होते हैं. उसके अलावा स्टेट जो है किसी तरह का भी कोई टाइटल नहीं देगा. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब जैसे ही ये टाइटल्स देने शुरू किए जाते हैं तो एक डिवाइड पैदा होने. देखिए, आजादी से पहले क्या था, जमींदार एक अलग कैटेगरी होती थी, तालुकेदार एक अलग कैटेगरी होती थी. तो वहां पे क्या होता था, जैसे ही ये वाली बात पैदा होती थी तो वहां पे एक डिवाइड पैदा होने लगता था. तो इसलिए उन्होंने ये टाइटल्स जो है बाय मीन्स ऑफ क्लॉज 1 ये खत्म किए हैं. क्लॉज 2 में नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. और एक और पाबंदी लगाई गई इसके अंदर कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी सरकार से भी किसी तरह का कोई जो है टाइटल स्वीकार नहीं करेगा. और तीसरी क्लॉज जो थी वो ये थी कि नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल. देखिए, इसमें 2 चीजें आपको मैं बता देता हूं कि कहीं कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मे यूज किया गया है और कहीं पर शैल यूज किया गया है. जहां पर मे यूज किया गया है वहां पर चीजें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जहां पर शैल यूज किया गया है वहां पर चीजें बिल्कुल मैंडेटरी हैं, बाउंडेड हैं, आप उससे इधर उधर नहीं हो सकते. तो ये कहती है, नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of president any title from any foreign state. यानी कि अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है और भारत में किसी पद पर प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है या किसी ट्रस्ट में किसी पद पर कार्यरत है, वो भी भारतीय राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी तरह का कोई टाइटल जो है किसी फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा. यानी कि यहां इस आर्टिकल के अनुसार इसके दायरे में इंडियंस एंड फॉरेनर्स जो भी यहां पर रह रहे हैं वो सब एक जैसे हैं. उन दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार है. ना कोई इंडियन किसी टाइटल को ले सकता है, ना कोई फॉरेनर किसी टाइटल को ले सकता है. फॉरेनर अगर किसी टाइटल को लेगा तो ही हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन ओनली ही कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. और चौथा क्लॉज जो था इसका था, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट emolument or office of any kind from or under any foreign state. वो किसी भी तरह का कोई उसके ऊपर कोई उपहार नहीं लेंगे, उसके अंदर किसी तरह का कोई अनुदान नहीं ले सकते या किसी तरह की कोई कहना चाहिए किसी आदमी को खुश करने के लिए जो दिए जाते हैं, तोहफे जो दिए जाते हैं वो नहीं ले सकते जब तक कि वो भारतीय राष्ट्रपति से संतुति या उनकी स्वीकृति ना ले. तो ये 2 आर्टिकल्स थे जिसके तहत जो है अबोलिशन ऑफ
untouchability and the title 17 and 18. And the purpose of removing these two things was to promote fraternity and the brotherhood amongst the people of India. So the liberty, equality, fraternity are the prime objects which Indian Constitution seeks to secure for its citizen. ये चीजें जो हैं, प्रीएम्बल का जो मकसद था वो ये था कि लिबर्टी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू गिव टू इट्स सिटीजन्स वाज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. These are the prime objects which Indian Constitution seeks to secure for its citizen. Why? ये क्यों करना चाह रहे थे या क्यों जो है ये भारतीय नागरिकों को ये सब चीजें दी गई? फॉर इंश्योरिंग, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका ये बिल्कुल एक मानना था या वो इस बात पे बिल्कुल सहमत थे कि अगर हम लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो है ये हम अपने भारतीय नागरिकों को नहीं दे सकते तो हम उनको कभी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस दे ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि वो जो है इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट. जब भारत आजाद हुआ था एक वेलफेयर स्टेट बन गया था. और वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि हम जो है एक कलेक्टिव गोल की तरफ बढ़ें बजाय इंडिविजुअलिज्म की तरफ. दस the attainment of collective goods नहीं, good, the attainment of collective good यानी कि सामूहिक समृद्धि की बात हम यहां पर कर रहे हैं, as distinguished from individual good is the aim of rendering justice. लोगों को न्याय देने के लिए उन्होंने, जो हमारे संविधान निर्माता थे या लेखक थे या जो उनका ग्रुप था, उन्होंने ये माना कि जब तक हम सामूहिक समृद्धि की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, हमारी सोच जो है सामूहिक समृद्धि की नहीं होगी और हम व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं हटेंगे, व्यक्तिगत लालसा को एक तरफ नहीं रखेंगे, व्यक्तिगत अपेक्षाओं को एक तरफ नहीं रखेंगे, तो हम जो है कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. और हम कभी हम जो मेन मकसद था टू डिलीवर द जस्टिस, जो कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, वो हम दे ही नहीं पाएंगे अगर जब तक कि हम जो है कलेक्टिव गुड की तरफ नहीं बढ़ेंगे. आपको एक बात बता दूं, गांधी जी ने अपनी एक बुक थी जिसके अंदर द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि ऐसा भारत जिसके में सभी कम्युनिटीज सद्भाव के साथ रहें. वो भी ये मानते थे कि जब तक सद्भावना नहीं पैदा होगी, स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव गुड नहीं पैदा होगी, फ्रेटर्निटी नहीं होगी, तब तक जो है भारत जो है वो एक सुदृढ़ भारत जो है वो नहीं बन पाएगा. तो दोस्तों ये हमने इसके सेकंड पार्ट की बात करी है प्रीएम्बल की. तो नाउ वंस आई विल रीड दिस प्रीएम्बल एज अ होल, आई होप दैट जिस तरीके से हमने इसको बताने की कोशिश की है और आपके लिए बहुत आसान इसको समझना, लिखना होगा. और अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस ढंग से लिखेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स. जो लिखना एग्जाम वाले लिखना चाहते हैं उनके लिए, वी पीपल ऑफ इंडिया, these three words are giving the authority. The authority कहां से आ रही है? We people of India is the authority. We people of India are the supreme authority. Solemnly resolved to constitute India into sovereign, secular, social, democratic republic. Why? To secure all its citizens justice, that should be social, economical justice, political justice, liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, and liberty of faith. Equality of status and opportunity. Why? And to promote among them fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. दोस्तों यहां तक हमने प्रीएम्बल की बात की है कि प्रीएम्बल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रीएम्बल है, ये दृढ़ निश्चय क्या किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे
और वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे कैसे होंगे, ये हमने सारी बात यहां तक की है। अब एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कैन प्रीएम्बल बी चेंज, क्या इसको हम बदल सकते हैं, यह बदला जा सकता है। एंड हाउ फार प्रीएम्बल इज यूजफुल इन इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसको जो है कहां तक जो हम कहना चाह रहे हैं प्रीएम्बल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन की बात, वो कहां तक हम इसकी व्याख्या कर पा रहे हैं, कहां तक हम इसको बयान कर पा रहे हैं, क्या ये सक्षम है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं और आप इसको याद रखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास रहा है उसमें तीन केस चाहे 4 केस जो है बड़े इंपॉर्टेंट गुजरे हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान की संरचना के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क डाला है। और इसमें जो सबसे पहले केस की बात करेंगे वो है बैरूबेरी यूनियन वर्सेस अननोन पर्सन्स। ये केस हुआ था। अब आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि बैरूबेरी क्या चीज है। मैं आपको बता दूं, ये जब ब्रिटिश ने इंडिया को डिक्लेयर किया, फ्री इंडिया डिक्लेयर हुआ, उससे पहले पाकिस्तान एक दिन पहले बन गया था। तो उन्होंने एक सर्टेन उनका एक क्राइटेरिया था जिसके तहत में इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की बाउंड्रीज अलग करनी थी। तो उस जमाने में जो बंगाल था वो एक राज्य था, यूनाइटेड बंगाल होता था, एक ही बंगाल था। तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान के 2 हिस्से बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान बना था, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज की डेट में बांग्लादेश कहते हैं, और इंडिया का कुछ हिस्सा आज जो हमारे इंडिया के पास है, जिसमें दार्जिलिंग शामिल है, जलपाईगुड़ी भी आपने सुना होगा, उसका भी कुछ हिस्सा है। तो ये बैरूबेरी पॉइंट था जो डिवाइड होना था, उसके डिवीजन को लेके। और इसके कुछ एनक्लेव्स थे, 12 एनक्लेव्स थे जो जलपाईगुड़ी के साथ लगे हुए थे और कुछ उधर बैरूबेरी के साथ में लगे हुए थे, और इसमें और भी कई, कूच बिहार का इलाका भी इसके अंदर शामिल था। तो इनको लेके कुछ कंफ्यूजन्स पैदा हुए, जिससे कुछ थोड़ी सी टेंशन्स हुई, और उसी को सॉल्व करने के लिए हुआ ये कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बैठक हुई। उस बैठक के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एक जो है कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अंदर मैं आपको बता दूं, ये डेट जो इसकी थी वो 10 सितंबर 1958 थी, इन अकॉर्डेंस टू द डायरेक्शन इशूड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन कौन इसमें शामिल था? द सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ इसमें शामिल थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शामिल थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड द कॉमनवेल्थ इसमें शामिल था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे जो थे उनकी तरफ से भेजे गए थे, वो लोग इसके अंदर शामिल थे। आइटम्स जो हैं वो डिस्कस करी बिटवीन द 2 कंट्रीज एंड साइंड ए जॉइंट नोट एंड सबमिटेड टू द देयर रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर्स को उन्होंने वो जॉइंट नोट जो है वो दे दिया, ताकि तमाम तरह की परेशानियां जो थी उनको हल किया जाए, और उस एरिया में उन कारणों से जो भी समस्याएं पैदा हो रही थी, जो टेंशन थी, वो हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाए। तो इसमें हुआ ये कि आज भी अक्सर होता है कि हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अंदर जो अगर आप जाएंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है कि वो जो है किसी स्टेट को शामिल कर सकता है, किसी स्टेट को निकाल सकता है, किसी स्टेट का नाम बदल सकता है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है। ये बहुत सारी पावर्स हैं, आप उसको जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो मामला यहां पर अटका कि जैसे ही इसमें ये बात हुई कि कुछ जो हिस्से हैं वो दूसरी तरफ जाने हैं, तो वहां पे लोगों ने विरोध शुरू कर दिया इसका, इंडिया के। जब इसका विरोध शुरू हुआ तो उसके अगेंस्ट जो है बहरहाल अब ये मामला हुआ कि ये भाई कैसे होगा। तो आया ये चूंकि कि एग्रीमेंट था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में एग्रीमेंट की कोई बात नहीं है, एग्रीमेंट की बात नहीं है, पार्लियामेंट की पावर्स हैं, लेकिन एग्रीमेंट उसमें शब्द कहीं पर नहीं आ रहा था। तो ये सवाल पैदा हुआ कि भाई ये होगा तो ये कैसे होगा। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने जब इस उलझाव को देखा
तो उन्होंने सारी उस वक्त की स्थिति को समझते हुए ये समझा कि हम क्यों ना इस क्वेश्चन को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, एक विवाद पैदा हो गया है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इसके अंदर हम एक रेफरल जो है वो मांग लेते हैं। तो लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है ये भेज दिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज व्यक्त किए। तो इसके अंदर 3-4 चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर बताई हैं। बात यह थी कि आर्टिकल 3 के तहत जो है कोई नया कानून बनाया जाए, या आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर्स जो है वो पार्लियामेंट को देता है, उसके तहत जो है कोई अमेंडमेंट किया जाए, या दोनों प्रोविजंस को किया जाए। दैट इज व्हाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in exercise of power conferred by Article 143 of the Constitution has referred the question to the Supreme Court. आर्टिकल की 143 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब आप उसको पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर्स दी गई हैं कि वो जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को जो है वो रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में। तो वहां पर उन्होंने इसके अंदर ही रेफर्ड दिस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड दे हैड 3 क्वेश्चन जो है उन्होंने इसके अंदर रखे। वो पहला क्वेश्चन था, इज एनी लेजिस्लेटिव एक्शन इज नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग बैरूबरी यूनियन। पहले ये था, क्या इसके अंदर जो है कोई इसकी जो एग्रीमेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये पूछा था, अगर ऐसा है तो क्या आर्टिकल 3 से संबंधित लॉ पार्लियामेंट में अगर बना दिया जाए तो वो काफी होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। या आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था, या एग्रीमेंट और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 3 के द्वारा लॉ ऑफ पार्लियामेंट काफी होगा, या 368 के तहत अमेंडमेंट काफी होगा, या दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये सवाल थे। तो पहले जो सवाल था कि इज एनी लेजिस्लेटिव एक्शन इज नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग बैरूबरी यूनियन, तो इसके मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द के अंदर जवाब दे दिया, यस। अब बात आई दूसरे सवाल की कि जहां पर उन्होंने पूछा था कि आर्टिकल 3 से संबंधित कोई पार्लियामेंट्री लॉ काफी होगा, या आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट होगा। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 3 से संबंधित पार्लियामेंट का कानून नाकाफी होगा। ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट रिटेबल टू आर्टिकल 368 विल बी कॉम्पिटेंट, सफिशिएंट एंड नेसेसरी। ये उन्होंने कहा ये जरूरी होगा 368 के तहत, यानी कि दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेबल टू आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 368 वुड बी नेसेसरी ओनली, यानी कि वो सिर्फ ना तो आर्टिकल 3 से काम चल रहा है, ना सिर्फ आर्टिकल 368 से काम चल रहा है, दोनों काम करने पड़ेंगे। देन ओनली यू कैन इम्प्लीमेंट दिस एग्रीमेंट। इफ प्रेसिडेंट चूजन फर्स्ट टू पास लॉ अमेंडिंग आर्टिकल 3, उन्होंने कहा अगर पहले आप आर्टिकल 3 को बदलते हैं, इन दैट केस पार्लियामेंट हैज टू पास लॉ ऑन दोज लाइन्स अंडरलाइनिंग आर्टिकल 368 एंड फॉलो इट विद द लॉ रिलेटेबल टू आर्टिकल 3 टू इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट। ये उन्होंने बता दिया कि अगर वो सिर्फ 3 की बात करते हैं तो 368 के अंदर जो वो लाइन्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा और तब जाके ये इम्प्लीमेंट होगा। तो वहां बैरूबरी केस के अंदर जो है ये बात तय कर दी गई कि जो अमेंडिंग पावर है वो है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्रीएम्बल है या कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल है, इसको चेंज किया जा सकता है। ये फर्स्ट थिंग थी। इसके बाद में आगे चल के 3 और केस आए, जिसके अंदर पहला केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या मामला हुआ, ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी का मामला था। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल
ये फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले उस जो है फंडामेंटल राइट था। तो इसमें उनका ये राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो गया। शंकरी प्रसाद का जमींदार लोग थे, उनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी, बहरहाल वो जमीनें जो है वो उनसे वापस ले ली गई और उसके तहत लेकिन वो राइट उनका वायलेट हुआ और वो उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। नंबर 1 क्या चैलेंज किया उन्होंने कहा ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो है उन्होंने उसको ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा यही गलत है। दूसरा क्या था कि आर्टिकल जो 31 है उसके अंदर आर्टिकल 31A और 31B इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वो इंसर्ट किए गए थे। तो उन्होंने कहा ये अल्ट्रा वायलेस है एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अल्ट्रा वायलेस का वायरस का मतलब जो है मैं आपको बता दूं कि ये उनका जो अधिकार क्षेत्र है उसके बाहर है, उनके दायरे अख्तियार से ही बाहर है। उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया और इस केस में कोर्ट ने ये माना कि भैया उनको पावर है, दे कैन डू इट, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है। आगे चल के फिर एक केस आया सामने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये भी जमीन से संबंधित मामला था। ये 2 भाई थे जिनके पास 500-700 एकड़ जमीन थी और पंजाब के अंदर उस जमाने की जो प्राइम मिनिस्टर थे या होम मिनिस्टर थे या जो भी उस वक्त में लाल बहादुर शास्त्री थे जो नेता थे, वो एक्चुअल में एग्रेरियन अप्रोच वाले लोग थे। उनका ये मानना था कि जब तक के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि इंडिया जो है वो एक वेलफेयर स्टेट बन गया था, जब तक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे लोगों के बीच में, जब तक सोशल जस्टिस नहीं हो सकता है। और लैंड कंसोलिडेटेड थी, जमींदारों के पास में थी। तो इस वजह से ये जहां जहां पर भी पावर में थी उस जमाने में कांग्रेस, वैसे तो मेजोरिटी में थी कांग्रेस हर जगह पर, तो उन्होंने ही इस कानून को पास किया। लैंड सीलिंग एक्ट जो है वो लगाए गए जिसके तहत लोगों को सिर्फ जो है 30 एकड़ अलाउड थी एक आदमी को और बाकी जमीन उनसे ले ली गई। तो उस चीज को उन्होंने जो है वहां पे उन्होंने ये कहा कि बिकॉज ये जो राइट टू प्रॉपर्टी इज द फंडामेंटल राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो गवर्नमेंट ने किया है और दे डोंट हैव एनी पावर टू चेंज। और चूंकि आर्टिकल 13 के अंदर आपको मैं बता दूं कि आप लोग पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल 13 में यह है कि अगर कोई भी लॉ भारतीय संसद या भारतीय सरकार ऐसा बनाती है जो कि किसी भी भारतीय नागरिक के मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो दैट विल बी वॉइड, वो वॉइड होगा। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो फंडामेंटल राइट के तहत मेरी जमीन का मामला है, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है और इन्होंने मेरा ये राइट इन्फ्रिंज कर दिया है, लिहाजा जो है उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। और इसके अंदर उन्होंने एक जो 31A था और 31B को भी चैलेंज किया, क्योंकि 31A और B में ये था कि अगर इन्होंने क्या काम किया था कि पहले 7 ही शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिर बाद में 9 हुए हैं। 9th शेड्यूल के अंदर इन्होंने कहा कि अगर हमने कोई चीज 9th शेड्यूल में रख दी है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो किसी फंडामेंटल राइट को भी वायलेट कर देगी तो वो वाइड नहीं होगी, वो नल एंड वाइड नहीं होगी, जो हमारा आर्टिकल 13 कह रहा है। तो 9th शेड्यूल के अंदर 13B की जहां पे बात थी उन्होंने उसको भी चैलेंज कर दिया। लेकिन कोर्ट ने जो है उन्होंने यहां पर भी इसको ये कहा कि साहब ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन मामला तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब आया नेक्स्ट केस, वो आया केशव नंदा भारती का केस। इसमें जो है चूंकि गोलकनाथ में इन्होंने मान लिया था कि जो पार्लियामेंट है उनकी पावर जो है वो अनलिमिटेड पावर नहीं है, लेकिन केशव नंदा भारती में पार्लियामेंट इज नॉट, इन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम,
and cannot change the basic structure of the constitution। क्योंकि गोलकनाथ में उन्होंने ये कहा था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन तो आप ठीक है चेंज कर लो, क्योंकि आपको पावर मिली हुई है। लेकिन यहां पर उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज कर सकते हैं, ये बात तो हमने मान ली, लेकिन आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं कर सकते, आप प्रीएम्बल को चेंज नहीं कर सकते, आप बेसिक स्ट्रक्चर की जो, हालांकि कोर्ट ने इसके अंदर जो है एक ओपन एंड रखा, उन्होंने बहुत सारी चीजों को जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर कहा, और ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हम इसको बिल्कुल एकदम बंद नहीं कर रहे हैं, हम ये टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कर भी रहे हैं इसके अंदर। लेकिन उसके अंदर ये आपका सॉवरेनिटी जो है, सेक्युलरिज्म है, सोशल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जस्टिस है, ये सब चीजें जो है आती हैं। तो हाउ फार लाइक केशवानंद भारती के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक क्वेश्चन हमने राइज किया था, तो अभी ये चीज क्लियर हो गई कि अमेंडमेंट हो सकते हैं, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़छाड़ करेंगे उसके साथ। अभी क्वेश्चन ये पैदा हुआ था कि हाउ फार preamble is useful in interpreting the constitution। preamble is the key to open minds of the constitution makers। जो हमारे संविधान निर्माता थे, एक्चुअल में जब प्रियम्बल लिखा गया तो अब उनको पता लग गया कि हमें किस दायरे में काम करना है, हमें किस तरह से काम करना है, हमें इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, और उसी दायरे के अंदर उन्होंने काम शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सप्रेस प्रोविजन है उनको ओवरराइड कर सकता है, ये भी एक खास बात थी। बेरुबरी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले वाले में उन्होंने कहा था इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में फिर ये हो गया कि नहीं इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ एनी सब्सटेंटिव पावर। उन्होंने कहा था चूंकि ये इसका पार्ट नहीं है तो इसलिए किसी पावर के लिए ये सोर्स भी नहीं बन सकता। Such powers are given in the expressly in body of the constitution। इन्होंने कहा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसके अंदर ये पावर्स दी गई हैं, और ये पावर्स जो है जो प्रीएम्बल चूंकि इसका पार्ट नहीं है तो वहां से ड्राइव नहीं होती हैं। व्हाट इज ट्रू, और एक और चीज खास बात ये कही गई थी कि व्हाट इज ट्रू अबाउट पावर्स इज ट्रू अबाउट प्रोहिबिशंस जो और रिस्ट्रिक्शंस। जो चीजें रोकी गई हैं और जो पावर्स हैं वो दोनों के बारे में ट्रू है। अगर कहीं पर कोई टकराव पैदा हो जाता है तो प्रीएम्बल की हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बयान करता है, ये खास बात थी। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर किसी क्लॉज में, किसी आर्टिकल में कहीं पर तजाद पैदा होता है, कहीं कोई टकराव पैदा हो जाता है या कहीं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो फिर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की तरफ जाएं और वहां पे जाके देखें कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रीएम्बल का है क्या ये ऐसा तो नहीं उस ऑब्जेक्टिव को खत्म कर रहा है। अगर वो उसको ऑब्जेक्टिव को खत्म कर रहा है तो वहां पर एक प्रॉब्लम है। बट इन केशवानंद भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट सेज प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुबरी में कहा था इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको उन्होंने जो है पिछले वाले डिसीजन को चेंज करा केशवानंद भारती में, और इन्होंने कहा इट्स ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस सीकरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, उन्होंने कहा था दैट नो अथॉरिटी हैज बीन रेफर्ड बिफोर अस दैट व्हाट इज ट्रू अबाउट पावर्स इज ऑल्सो ट्रू अबाउट प्रोहिबिशन एंड लिमिटेशंस। उन्होंने कहा ये जो हमारे सामने बात की जा रही है कि जो पावर्स के बारे में जो बात सत्य है वही जो है लिमिटेशंस के बारे में भी सत्य होगी, ये बात कही तो जा रही है, लेकिन हमें कोई इसके लिए उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि कहां से ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस सीकरी ने कहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल, एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रिटेड इन लाइट ऑफ प्रीएम्बल। और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने के लिए आपको हमेशा it should be read in the light of preamble।
दोस्तों यहाँ हमने बात की है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और क्या ये उसको सर्व करता है। तो डेफिनेटली जो हमारा प्रीएम्बल है, यहाँ पर जस्टिस सीकरी ने जो कहा कि ये इसका पार्ट है, और जब तक अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप इसको जो है इसकी व्याख्या के लिए और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप प्रीएम्बल की तरफ देखें। तो इसका मतलब यही उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है और ये वहां तक के लिए यूजफुल है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वाला एपिसोड आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा है और रहेगा, और आप लोग इसको पसंद करेंगे। कहीं पे कोई बात नहीं समझ में आई है, यू कैन गेट बैक टू मी एंड माई नंबर इज 9312099246 9873738444। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोई आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर कोई आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। आई होप फॉर राइटिंग एग्जाम आप अगर इनके नोट्स बना लेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। थैंक यू, गुड नाइट।